السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں CIA تھریٹس ٹو پاکستان پارٹ 5 کے ساتھ. پارٹ 4 ہم اس کا کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کی 5ویں کڑی ہے. میں ایک بات بتاتی چلوں کہ آج کی ایپیسوڈ کسی بھی صورت مس کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ آج اس میں ہم ایسے ایشوز کو ڈسکس کریں گے جن کو جان کر آپ کو پروگرام کے اینڈ میں کوئی نہ کوئی کنکلوژن آپ ڈرائیو کر سکیں گے پاکستان کے کرنٹ حالات کے اوپر. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ہارڈ ہٹنگ ایپیسوڈ. زید صاحب پلیز شروع کیجیے. دیکھیے معروف، جیسے آپ نے کہا کہ ہم CIA تھریٹس ٹو پاکستان کی ایک سیریز کر رہے ہیں. یہ اس کا 5واں پروگرام ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے سوات آپریشن کی بات کی تھی. آج اللہ کے فضل سے سوات آپریشن اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف پہنچ چکا ہے. جن ملیٹنٹس، دہشت گردوں اور ٹیررسٹ کو انڈینز نے اور CIA نے تیار کیا تھا پچھلے 5 سال میں، اللہ کے فضل سے سوات میں ان کی کمر توڑی جا چکی ہے. ان کے بیسز، کمانڈ کنٹرول سینٹرز، ان کے ایکسپلوسیو لیبارٹریز، ان کے ویپن کیشز، ان کا اسی دور میں ساؤتھ وزیرستان میں بیت اللہ محسود کے خلاف آپریشنز کی بات کی جا رہی تھی. ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ جب سوات کا آپریشن پھیلا ہوا ہو اور ہم سوات میں انگیج ہوں تو اس وقت بیت اللہ محسود کے خلاف ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا ہمارے لیے ایک مشکل آپشن ہوگا. بالکل، خاص طور پر اس وقت کہ دیکھیے سوات کی وادی چاروں طرف سے پاکستان کے علاقوں سے گھیری ہوئی اور پاکستان کے لیے قدرے آسان تھا کہ ہم اپنے ہی علاقے کو گھیر کر دشمنوں کو اندر ٹریپ کر لیں اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک فوجی کارروائی کریں. رائٹ. وزیرستان کے علاقہ اس معاملے اس لحاظ سے انتہائی مشکل، انتہائی دشوار گزار اور مختلف ہے. ساؤتھ وزیرستان میں CIA اور را کا سب سے بڑا دہشت گرد ایسٹ بیت اللہ محسود، اس کی پوری سپلائی لائن افغانستان کی طرف سے کھلی ہوئی ہے. یعنی پاکستان اگر اس طرف سے کارروائی بھی کرتا ہے اپنی طرف سے ساؤتھ وزیرستان میں، تو پھر بیت اللہ محسود کے لیے افراد، اسلحہ، روپیہ، ویپن، کمیونیکیشن اکوپمنٹ یہ سب لانا، اس کے لیے سپلائی کی کوئی پرابلم نہیں ہے. جو انڈین کاؤنسلیٹس، سو کالڈ کاؤنسلیٹس، بیسکلی وہ انٹیلیجنس آؤٹ پوسٹ ہیں جو جلال آباد سے لے کے نیچے تک پھیلے ہوئے ہیں اور جہاں باقاعدہ انڈین آرمی کے آفیسرز اور ان کی آرمی کے انٹیلیجنس ایسٹس سپورٹ کر رہے ہیں اس تمام دہشت گردی کو جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. افغانستان میں امریکن امبریلا کے نیچے وہ پوری طرح کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. ہم وہ تمام پرسپیکٹو کو آج ڈسکس کریں گے کہ جنوبی وزیرستان اور نارتھ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے پاس آئندہ آنے والے وقت میں کیا آپشنز ہیں. دیکھیے پچھلے دنوں یہ بات ہم آپ کو بہت پہلے سے بتا رہے ہیں، کئی برس ہو گئے اس بات کو ہمیں ریپیٹ کرتے ہوئے کہ بیت اللہ محسود کو CIA ڈرونز اٹیک کر کے قتل نہیں کرتے، اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. جب پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ جب ناردرن 5 ٹرائبل ایجنسیز جو پاکستان کی ہیں، باجوڑ، محمد، قرم، اورکزئی، خیبر، ان تمام ایجنسیز کو کلیئر کرنے کے بعد ہم نے سوات میں ملٹری آپریشن شروع کیا تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف. اس کے بعد ہمارا فوکس ساؤتھ وزیرستان پر ہونا تھا. نارتھ وزیرستان میں پاکستان نے تقریباً 2-1.5 سال پہلے سے ہی ہم نے پیس ڈیلز کر کے اس علاقے کو سیٹل کر دیا تھا. وزیر ٹرائب کے اندر جو گل بہادر، حافظ گل بہادر کے نام سے ایک ملیٹنٹ کمانڈر تھا، اس کی پاکستان سے امن معاہدہ تھا، پیس ڈیل تھی اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نارتھ وزیرستان میں پچھلے 1.5-2 سال سے نہیں ہو رہی تھی یا امن تھا. رائٹ. اب امریکنز کے لیے لازم تھا کہ بیت اللہ محسود کو بچانے کے لیے کوئی کارروائی کریں. ان کو ہماری پشت میں خنجر دینا ضروری تھا. ایک طرف تو بیت اللہ محسود کو پروٹیکٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ ڈرون سے اس کو اٹیک نہیں کرتے. صحیح. پاکستان آرمی بہت زیادہ محتاط تھی ساؤتھ وزیرستان میں جاتے ہوئے. جو ہماری اسٹریٹجی تھی وہ یہی تھی کہ پہلے بیت اللہ محسود کے گرد حصار، گھیرا لگا لیا جائے، اس کو پہلے کنٹین کیا جائے، اس کی فیول سپلائیز روکی جائیں اور اس کے افراد کو جو باہر نکل کر آنے جانے کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹین کیا جائے، اس کے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر ایریل سٹرائکس کے ذریعے تاکہ کوئی کسی قسم کی سویلین ڈیمیج اور کیجوالٹیز نہ ہوں اور بیت اللہ محسود کو ہٹ کریں. مگر جب اس کی سپلائی پیچھے سے کھلی اور امریکنز اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو فوجیں لے کے ساؤتھ وزیرستان میں داخل ہو جانا ان پہاڑی علاقوں میں ایک مشکل آپشن ہے. امریکنز نے کیا کیا؟ جو غداری ہمارے ساتھ انہوں نے کی وہ یہ کہ انہوں نے نارتھ وزیرستان پہ حافظ گل بہادر کو بھڑکا دیا پاکستان کے خلاف، جہاں پیس تھا، پہلے جہاں امن تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب امریکن ڈرونز نے ان کے علاقوں پہ اسٹرائکس کی، نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ گل بہادر کو یا پہلے وہ خرید چکے تھے اسی دن کے لیے کہ جب پاکستان بیت اللہ محسود کے خلاف آئے گا تو یہ نارتھ میں پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیں گے تاکہ پاکستان کے لیے ایک سیریس پرابلم کھڑی ہو جائے.
हाफिज गुल बहादुर ने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री कॉन्वॉय पर हमला किया और 40 से ज्यादा हमारे ऑफिसर्स और जवान शहीद कर दिए, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल हैं। और इस हमले के नतीजे में अब हाफिज गुल बहादुर ने भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी का सबूत दिया है। अब उसकी लाइन, वो रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। अब उसका सुलूक, उसके साथ भी वही सुलूक होगा जो बैतुल्लाह महसूद के साथ किया जाता है। उसने अमन मुआहिदा तोड़ा, सही। उसने अमेरिकन के साथ मिलकर बैतुल्लाह महसूद से प्रेशर हटाने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया। अमेरिकन ने उसको बड़ी भारी कीमत इसकी दी, उसके लोगों पर इश्तियाल दिलाने के लिए ड्रोन भी हमले किए और इसको पैसे भी दिए। अब पाकिस्तान के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो गई नॉर्थ वजीरिस्तान में। राइट। दूसरी तरफ इंडियंस, जैसे हमने कहा, उनकी सप्लाईज पीछे से खोल के रखी हुई है उन्होंने, और पाकिस्तान के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। हामिद कारजाई, सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का, उसका इलेक्शन शुरू होने वाला है अगले महीने अगस्त के आखिर में अफगानिस्तान में इलेक्शन। बिल्कुल। इंडिया ने $100 मिलियन दिए हामिद कारजाई को इलेक्शन कैंपेन के लिए और इस बात के लिए कि यह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कैंपेन को बढ़ाएगा। $100 मिलियन। हामिद कारजाई ने तमाम शराइत इंडियंस की तस्लीम कर ली हैं और उसका भाई जो कंधार का गवर्नर है, इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से लेकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान तक हर एक को मैसिव सप्लाईज और इक्विपमेंट और असला जो पहुंचा रहा है, उस पैसे से जो इंडियंस ने इसको इलेक्शन कैंपेन के लिए दिया है वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रही है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखिए, पाकिस्तान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है कि इंतहाई सख्त फैसले करें। हम मजीद अपने ऑफिसर्स और जवानों को इंडियन दहशतगर्दी के तहत शहीद नहीं करवा सकते। अब हम बड़े सख्त फैसले करने जाएंगे इंडियन के खिलाफ, और हमें करने चाहिए। देखिए, हमारे पास अब क्या ऑप्शन है? ऑप्शन यह है कि एक तो यह कि हम साउथ वजीरिस्तान में अपनी तरफ से कार्रवाई करें, देर से करें, अभी करें, बाद में करें, घेरा लगा के हम बैठे हुए हैं, अपने टाइम पे जब चाहेंगे हम बैतुल्लाह महसूद को हिट करेंगे और उसके साथ गुल बहादुर को भी। अब दोनों को एरियल स्ट्राइक्स के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए, बॉम्बर्स के जरिए मारा जा रहा है, लेकिन जब वो सॉफन अप होंगे देन विल मूव इन। राइट। वजीर ट्राइब्स, बाकी तमाम इलाकों के लोगों ने मलामत की है, उन्होंने सख्त डांट डपट की है गुल बहादुर को कि तुमने ये पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बगावत की। अब वो खुद परेशान हो गया कि ये हमने, क्योंकि वजीर पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, महसूद पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, आ रही है, वो पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं। अब अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि साउथ वजीरिस्तान में मुल्ला नजीर को, जो वो एक कमांडर जिससे पाकिस्तान ने पीस डील की हुई है, उसको डराएं और धमकाएं कि अगर तुम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो हम तुमको ड्रोन स्ट्राइक। ये ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है। ये अमेरिकन का स्ट्रेटजी यही थी कि पाकिस्तान जब बैतुल्लाह के खिलाफ आएगा तो ये जगह जगह हमारे खिलाफ महाज खड़े कर देंगे कि तब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो। मुल्ला नजीर अभी फैसला नहीं कर पाया कि मैं किस तरफ जाऊं। अमेरिकन थ्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उसकी पीस डील है। अगर उसने भी मुल्ला गुल बहादुर की तरह ये हरकत की कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया, फिर ये सारे रोंदे जाएंगे। इनको साफ वार्निंग अभी दी जाती है। नाउ, अब पाकिस्तान का ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि हम इस तरफ से कार्रवाई करें और इनको निकालने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ये निकाले चले जाएंगे। घेरा लगाया जा चुका है, वी आर वेटिंग फॉर डायरेक्ट अटैक करें। हम अपनी टर्म्स पे जब चाहेंगे अंदर जाएंगे और इनको मारेंगे इंशाल्लाह। नुकसान होगा, शहादत हमें देनी पड़ेगी, लेकिन शहादत देना हमारी रिवायत है। पाकिस्तानी कौम शहादतों से नहीं घबराती। देखिए, दूसरा, अब बिल्कुल डिसाइसिव बात हो गई है कि हमें उन इंडियन एसेट्स को एलिमिनेट करना है जो अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। जब मुंबई का हमला हुआ, मुंबई में अटैक्स हुए, तो इंडिया ने बहाना यह बनाया कि चूंकि ये हमले पाकिस्तान से आए हैं, लिहाजा पाकिस्तान पर हमला करने के हम हक रखते हैं। उनके तैयारे आए, बिल्कुल उनके तैयारे भी आए हम पर हमला करने के लिए, लाहौर के पास और कश्मीर में बॉम्बिंग के लिए। जब इंडिया यह कर सकता है कि एक आजाद मुल्क पर हमले करे सिर्फ बहाना बना के, जब कोई सबूत उसके पास ना हो, हमारे पास तो सबूत मौजूद है। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान को ओपन डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी करनी चाहिए कि अगर इंडिया अगले चंद हफ्तों तक अपने एसेट्स को, अपने बेसिस को, अपने सेंटर्स को बंद नहीं करता है, तो पाकिस्तान इस बात का हक रखता है कि हम अंदर अफगानिस्तान में जाकर उनको बॉम्ब करें, और हमें करना चाहिए। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस कि उनकी तरह, हमें पता है कि अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे बेदरेग रुपया, पैसा और असला पाकिस्तान के अंदर बगावत और दहशतगर्दी बर्पा करने के लिए किया जा रहा है, और अमेरिकन एक मूव नहीं कर रहे हैं इंडियंस को रोकने के लिए, और इंडियंस पूरी आजादी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को, हमारे सियासतदानों को, हमारे मीडिया को, हमारी हुकूमत को अब डिसाइसिव फैसला कर लेना चाहिए कि नेटो की सप्लाईज यहां से नहीं जाएंगी। पाकिस्तान को अपनी पूरी पॉलिसी ओवरऑल करनी है। हम एक बहुत फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त अगर पार्लियामेंट ने डिलीवर नहीं किया, इस वक्त अगर पार्लियामेंट ने यह फैसला नहीं किया कि हम अमेरिका से ताउन नहीं करेंगे जब तक वो इंडिया को वहां से नहीं निकालते, पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम इंडियंस की वजह से, सारी प्रॉब्लम इसलिए कि सीआईए के एसेट्स वहां बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम कर रहे हैं। इस वक्त सीआईए और रॉ का नेक्सस बन गया है, वो दोनों आपस मिलकर एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट और गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती है, फिर इनको जगह खाली कर देनी चाहिए। तो कुछ ऐसे गैरतमंद हुक्मरान आने चाहिए जो पाकिस्तान की इज्जत की हिफाजत कर सकें। हमारे 40 जवान एक मार्के में शहीद हुए हैं वहां पर, और पूरे मुल्क में हुकूमत की तरफ से, न मीडिया की तरफ से एक एहतजाज नहीं किया गया इंडिया के खिलाफ। एक बात नहीं कही गई कि तुम्हारी वजह से ही हुआ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इस पे ऊपर, और हम भूले नहीं है एक एक शहीद, अपना हिसाब लेंगे इनसे इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ
अमेरिकन उतने ही बड़े गुनाहगार हैं कि जितने के इंडियंस हैं, क्योंकि अमेरिकन CIA की वजह से, जबकि उनके ड्रोन हर तरफ हमले करते फिर रहे हैं, पाकिस्तानी बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत कार्रवाई डाल रहे हैं। अमेरिकन को पाकिस्तान अब बैतुल्लाह महसूद को जिंदा गिरफ्तार कर लेगा, और ये बात हम आपको बता दें कि अमेरिकन उसको जिंदा गिरफ्तार नहीं होने देंगे, उससे पहले मारेंगे उसको। लेकिन अभी जब पाकिस्तान आर्मी अंदर नहीं जा रही है तो वो उसके आसपास हमले करके हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट हिट हिम डायरेक्टली। हालांकि वो सैटेलाइट फोन यूज करता है, पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है अमेरिकन को कि किस जगह बैठा हुआ है वो। और अब एक आखिरी सोल्यूशन इसका हम देने जा रहे हैं, ये डिसाइसिव और फाइनल सोल्यूशन है अफगानिस्तान और पूरे खित्ते के तमाम फसादात का। अमेरिकन का जवाब यह है कि हम अफगानिस्तान में इसलिए बैठे हुए हैं, नेटो का जवाब यह है कि हम अफगानिस्तान पर इसलिए कब्जा करके बैठे हुए हैं कि यहां पर दहशतगर्दी होती है और हम अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए बैठे हैं। ये इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें अच्छी तरह मालूम है अफगानिस्तान को सिर्फ बेस है इनके लिए। इनका असल ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में इतना फसाद बर्पा किया जाए कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल और फेल्ड स्टेट है और इसके न्यूक्लियर हथियार ले लेने चाहिए, और यहां अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशंस फोर्सेस पाकिस्तान में आए ताकि वो आने के बाद पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर कब्जा कर ले। उनका जवाब ना सिर्फ झूठ, लग़्व और प्रोपेगेंडा और झूठ पे मबनी है। वो अफगानिस्तान में ना वॉर ऑन टेरर के लिए आए हैं ना दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ वहां पहुंचे हुए हैं। हमको ये बात अब साफ मालूम हो गई है। अफगानिस्तान के लोगों में अपनी प्रॉब्लम है। अफगान तालिबान और अफगानिस्तान के ताजिक और उज़्बक लड़ते रहे आपस में। जब अफगान तालिबान की हुकूमत रही है तो इनका फसाद रहा है आपस में ये अमन मुआहिदा नहीं कर सके, बातचीत नहीं कर सके, और इनके दाखिली इख्तिलाफ की वजह से मौका मिला अमरीकियों को कि अमेरिकन अपनी फौजें लेकर दाखिल हो जाए। इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि यह हम तस्लीम करते हैं कि अफगानिस्तान में पीस कीपिंग फोर्सेस की जरूरत है। अफगान खुद अब इस काबिल नहीं है कि उनको बिठाकर आपस में इनसे बात कराई जाए जब तक कि कोई उनके ऊपर एक बड़ी ताकत ना हो। लेकिन वो बड़ी ताकत ना अमेरिकन होंगे ना नेटो होंगे। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान दुनिया अपनी एक कलेक्टिव फोर्स बनाए, पाकिस्तान क़यादत करे, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान, मलेशिया, बांग्लादेश और तमाम मुसलमान मुल्कों की कम से कम 50,000 फौज अफगानिस्तान में दाखिल की जाए। अब मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स। अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, हम अपने मसाइल खुद हल करना जानते हैं, हमें कोई क्रूसेडर्स की और सलीबियों की जरूरत नहीं है कि हमारे इलाके में आके हमें सिखाएं कि हम तुम्हारे अंदर अमन पैदा करेंगे। कुरान के अहकामात वाज़ेह हैं कि मुसलमानों के दो ग्रोह में इख्तलाफात हो जाए तो उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक सुलह करा दो, और फिर जो ग्रोह जुल्म करे उससे लड़ो। ये अफगानिस्तान के तमाम मुसलमान, चाहे वो उज़्बक हो, ताजिक हो, पश्तून हो, चाहे तालिबान के हों, चाहे वो शुमाल के हों, आपस में उनके इख्तलाफात होंगे, उन्होंने सब गलतियां की होंगी, लेकिन वो हैं मुसलमान, हैं अफगानिस्तान के मुसलमान। पाकिस्तान की फलाह इस बात में है कि नेटो और अमेरिकन फोर्सेस को निकाल दिया जाए, तमाम इंडियन एसेट्स वहां से निकाल दिए जाएं और वहां पर मुसलमान पीस कीपिंग फोर्सेस दाखिल की जाए। अब पाकिस्तान को सीरियसली डिमांड करना चाहिए, पाकिस्तान को एक नया डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लॉन्च करना है मुस्लिम दुनिया में कि कम से कम 10-12 मुसलमान मुल्कों की फौजें जब ये इकट्ठे होंगे, मुसलमान मुल्क, ना तालिबान इनके खिलाफ लड़ेंगे, ना तालिबान इन पर हमले करेंगे, ना दुनिया में किसी को एतराज होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान वहां पर अमन लाने के लिए तमाम दुनिया के मुसलमान मुल्कों के साथ जब अपनी फौजों को दाखिल करेगा और तमाम अफगानों को इकट्ठा बिठा के ग्रैंड जिरगा करेगा कि तुम आपस में आओ, अपने मामला तय करो, खुद हुकूमत करो, और जब तुम्हारे मामला तय हो जाएंगे तमाम मुसलमान फौजें अपने इलाकों में चली जाएंगी। इससे बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता। यूनानिमस डिसीजन होगा सबका। एग्जैक्टली इसमें ना अमेरिकन, क्योंकि जब तक अमेरिकन और नेटो रहेगी अफगानिस्तान के गैरतमंद अफराद मुसलमान उनके खिलाफ जिहाद जारी रखेंगे, रेजिस्टेंस जारी रहेगी। अफगानिस्तान में जो मर्जी इलेक्शन करा लें, जो मर्जी पिट्ठू हुकूमत अपनी लेके आ जाए, जो मर्जी हामिद कारजाई और लेकर आ जाए, इससे मुल्क में 9 साल हामिद कारजाई को भुगत चुके हैं। इस जालिम शख्स ने इस जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। पाकिस्तान के अंदर हमेशा रहा, पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन निकला, गद्दार, ईमान का गद्दार, दीन का गद्दार, अपने मुल्क और कौम का गद्दार। अब इस शख्स के साथ हम कोई मुआहदा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में जो भी इलेक्शन करके ये जिस किस्म की भी कारजाई को दोबारा लाने की साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट इट। अब कोई उससे हमारे मजीद ताल्लुकात ना बातचीत हो सकती है। इसका सोल्यूशन अब सिर्फ इतना है कि अफगानिस्तान में एक पीस कीपिंग फोर्स मुसलमानों की दाखिल की जाए। अगर यह कर दिया जाता है तो वहां मज़ाहमत और रेजिस्टेंस और जंग खत्म हो जाएगी, तमाम इंडियन एसेट्स वहां से खत्म हो जाएंगे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को असलहे रुपए की सप्लाईज बंद हो जाएंगी। ओवरनाइट पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्कों में अमन आ जाएगा। इससे बेहतर और कोई सोल्यूशन नहीं है इस पूरे खित्ते में अमन लाने के लिए। अमेरिकन को अब साफ साफ, जिस तरह इराक में उन्होंने टाइम टेबल दिया है कि हम इराक से निकलना चाहते हैं, पाकिस्तान और मुसलमान मुल्क, अफगानिस्तान के मुजाहिदीन भी और पाकिस्तान के मुसलमानों को प्रेशराइज अमेरिकन को करना है। टाइम टेबल दो, निकलो यहां से, हम तुम्हें सेफ एग्जिट देने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुम नहीं निकलोगे तो हम तुम्हें ताबूतों और डब्बों में बंद करके भेजेंगे यहां से, बिकॉज देन आवर पॉलिसी हैज टू चेंज।
इस पॉलिसी को कि जो 9/11 के बाद पाकिस्तान ने बनाई थी अब कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इनफ, हमने अब एक यू टर्न लेने की जरूरत है। पाकिस्तान में जिस लेवल की दहशतगर्दी हो रही है इसको इमीडिएटली अभी इसी वक्त रोकना जरूरी है। अल्लाह के फजल से हमने कमर तोड़ दी है उसकी, लेकिन जो फाइनल पॉकेट्स हैं उसकी नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में, अब ये अपना आखिरी जोर ये दहशतगर्द CIA और रॉ अपने इन एलिमेंट्स के जरिए पाकिस्तान में लगाएंगे, खुदकुश हमले करने की कोशिश करेंगे, गाड़ियां भेजेंगे असलहे और बारूद से भरी हुई। इनका लास्ट अटेम्प्ट होगा कि पाकिस्तानी कौम को यह डरा सके। फजल से हम डरने वाली कौम नहीं है। हम शहादतें देना भी जानते हैं, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानते हैं, और हमें इतनी गैरत, जुर्रत, ताकत अल्लाह के फजल से दी हुई है कि अगर हम ये फैसला कर लें कि हम अमेरिकन और इंडियंस को अफगानिस्तान में दफन कर देंगे तो हम कर भी सकते हैं। हमें मजबूर न करें इस बात के ऊपर। ये बात हम पहले भी उनको वार्न कर चुके हैं। अब हम अमेरिकन को उतना ही बड़ा थ्रेट समझते हैं जितना हम इंडियंस को समझते हैं, क्योंकि अमेरिकन ने गद्दारी की है, अमेरिकन ने हमारी पुश्त में खंजर मारे हैं हमेशा। अयूब खान ने जो कहा था कि अमेरिकन की दुश्मनी बुरी है लेकिन इनकी दोस्ती खुदकुशी होती है, हम भारी कीमत अदा कर रहे हैं इनकी दोस्ती की। अब इसको हम अदा नहीं करेंगे, हमें नहीं करना चाहिए बहैसियत एक कौम। अमेरिकन की नेटो की सप्लाई लाइंस यहां से नहीं जानी चाहिए अफगानिस्तान, अगर वो बैतुल्लाह महसूद और दहशतगर्दों को सपोर्ट करके पाकिस्तान आर्मी के जवान और ऑफिसर्स को रोज शहीद करवा रहे हो। इनकी सप्लाईज यहां से नहीं जानी चाहिए जब तक ये इंडियन रॉ को रोकते नहीं है इस बात पे कि पाकिस्तान के खिलाफ की दहशतगर्दी वहां से बंद करें। एक दबाव नहीं डाला उन्होंने इंडिया के ऊपर। चारों तरफ इंडियन एसेट्स इस तरह फैले हुए हैं जैसे चूंटियां और कीड़े मकोड़े होते हैं अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की गद्दारी और साजिश जारी है वहां से। एक तरफ अमेरिकन हमारी बहन डॉक्टर आफिया को लेकर चले गए, उसको वापस नहीं करते, फिर हमारे अंदर गद्दारी और दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। नाउ इट इज टाइम दैट पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी मीडिया, पॉलिटिशियंस, थिंकर्स, स्टूडेंट्स एंड द पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट मस्ट डिलीवर। They have to take a stand. ये बात अल्लाह के फजल और करम से हम आपको बता रहे हैं कि जो होलब्रुक प्लान ये लोग लेकर आए थे वो बूरे अरब में दफन हो चुका है, गर्क हो गया अल्लाह के फजल से। अब इनको खुद समझ में नहीं आ रहा अमेरिकन को कि अब पाकिस्तान को किस तरह काबू करें, किस तरह कंट्रोल करें। जो दहशतगर्द एलिमेंट्स इन्होंने तैयार किए थे अल्लाह के फजल से हमने सर काट दिया उनके, और मजीद के काटेंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कोई मूवमेंट ऐसी बिल्ड नहीं कर सकी कि बलूचिस्तान अलग हो जाए। अल्लाह के फजल से इस हुकूमत को जिसको ये लेकर आए थे इतना शदीद दबाव डाला गया अवाम की तरफ से। इसमें भी हुकूमत में भी चंद एक अच्छे एलिमेंट्स हैं कि जिन्होंने अमेरिकन को रेजिस्ट किया है, अमेरिकन पॉलिसीज को रेजिस्ट किया है, जिन्होंने फौज की और कौम का साथ दिया है और अप्रूव किया उन तमाम बातों को कि जो फौज और हुकूमत और जो फौज और अवाम की और पाकिस्तान से मोहब्बत प्यार करने वाले लोगों की थी। लेकिन कुछ एलिमेंट्स इस हुकूमत में ऐसे भी हैं जो साफ खरे नॉन गद्दार हैं। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है वो कौन है। अब ये वक्त मुत्तहिद हों, इकट्ठे हों। अमेरिकन थ्रेट्स जो पाकिस्तान के खिलाफ बिल्ड हो रहे थे अल्लाह ताला ने कमर तोड़ दी है उनकी। अब अमेरिकन के पास कोई पॉलिसी नहीं है। अल्लामा इकबाल का वो बात कि आसिया ये पैकर आबो गिलस्त, एशिया जो है वो मट्टी और पानी का एक वजूद है, और उस वजूद में जो दिल है वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का फसाद पूरे एशिया का फसाद होगा, अफगानिस्तान में अमन पूरी दुनिया का, पूरे खित्ते का अमन होगा। इस बात को हमेशा हमें जहन में याद रखना है। पाकिस्तान में जितने सिक्योरिटी इश्यूज आज हैं, एक रिएक्टिव पॉलिसी बिल्ड करके इनको यहां से धक्का देकर निकालकर आप इस मसले को हल नहीं कर सकते जब तक कि इसकी पुष्ट पर जाकर अफगानिस्तान में इनको रिजॉल्व न किया जाए। अफगानिस्तान में हमको तमाम अफगान एलिमेंट्स के साथ बातचीत शुरू करनी है। वो जो जिरगे में फैसला किया गया था, पाक अफगान जिरगा में जो फैसला किया गया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तमाम मिलकर, चाहे वो पश्तून हो, ताजिक हो, उज़्बक हो, उन तमाम एलिमेंट्स को ऑन बोर्ड लाके बात की जाएगी। अभी तक जिरगे के फैसले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाए गए। दे मस्ट बी टर्न इनटू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान ओपन डिक्लेरेशन करे कि हम अफगानिस्तान में अब न्यूट्रल हैं, हम किसी किस्म के अमेरिकन का साथ नहीं देंगे इस जंग में। हमें कोई फायदा नजर नहीं आता इस जंग में कि अमेरिकन और नेटो वहां मौजूद रहें, अफगान आपस में लड़ें और अमेरिकन और इंडियंस पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें। यह सरासर खसारे का सौदा है। वी मस्ट नॉट डू इट नाउ, इनफ, स्टॉप इट नाउ। इस हुकूमत अगर ये नहीं करती है, हम फिर कह रहे हैं रास्ता छोड़ दे, वरना अवाम का तूफान इनको हटा देगा यहां से। पाकिस्तानी चुकी है और हम शहीद भी दे रहे हैं। हमें अपने गद्दारों की वजह से मजीद शहीद और नुकसानात उठाने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन्स मस्ट लीव अफगानिस्तान नाउ, दे हैव नो बिजनेस देयर। इंडियंस मस्ट लीव अफगानिस्तान। इंडियंस का क्या काम है कि अफगानिस्तान से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं। वो ना अफगानिस्तान के लोग ना हिंदू हैं, ना काफिर हैं, ना पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और इंडियंस एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं कारजाई जैसे गद्दारों की तरह। मीर जाफर और मीर सादो को तारीख में जिनका नाम हमेशा नापाक अल्फाज से लिखा जाएगा, आज चंद दुनिया की मौज कर रहे हैं वो, लेकिन इनकी कब्रों के निशान भी कोई नहीं मिलेंगे। फातिहा पढ़ने कोई नहीं जाएगा इनकी कब्रों के ऊपर। ये जो आज मुसलमान मिल्लत का सौदा किए बैठे। साफ वार्निंग हम अफगानिस्तान के आज के हुक्मरानों को भी दे रहे हैं, अमेरिकन को भी, नेटो को भी, CIA को भी और इंडियन रॉ को भी। हम एक एक खून का हिसाब लेंगे इनसे।
ہمارا ایک ایک شہید ان کے 1000 مردار سے زیادہ قیمتی ہے. We are noticing and we are noting everything. We have the capacity to destroy you in Afghanistan. آج ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہماری کمزوری مت سمجھو اس کو. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم ڈری ہوئی ہے. صرف لحاظ کر رہے ہیں. ہم صرف اپنی درگزر اپنی معافی کا ثبوت دے رہے ہیں. ہم صرف اپنے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن there is a limit to it. اب ساؤتھ وزیرستان میں ہمارا سب سے بڑا دشمن بیت اللہ اور اب اس کے ساتھ گل بہادر بھی ہو گیا ہے. ہم انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں چند مہینوں میں ان دونوں کو ایلیمنیٹ کریں گے. ان تمام ایسٹس کو ایلیمنیٹ کریں گے جو پاکستان میں پیدا کیے ہیں ان دہشت گردوں نے. پاکستانی قوم کو قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہم نے وی ہیو میڈ گریٹ پروگرس اگینسٹ دس دہشت گردی, اگینسٹ دس ٹیررزم. لیکن اب سٹیج ایسی آ گئی ہے کہ جب تک ان کے بیسس کو افغانستان میں ہٹ نہیں کیا جائے گا, جب تک ان کا کمانڈ کنٹرول سینٹر نہیں تباہ کیے جائیں گے جو افغانستان میں, جب تک ان کی کمیونیکیشن اور سپلائی لائن نہیں تباہ کی جائے گی, ہماری قیمت بہت بڑھ جائے گی اس جنگ میں. اگر امریکنز انڈینز کو نہیں نکالتے ہیں, اگر امریکنز کی سپلائی لائن یہاں سے نہیں روکی جاتی ہے, then Pakistan also have the option کہ we openly declare our support for افغان طالبان, گلبدین حکمت یار and جلال الدین حقانی. یہ ایک آپشن ہمارے پاس اور بھی رکھا ہوا ہے کہ پھر ہم سائڈز لیں, لیکن امریکن کی سائڈ لینے کے بجائے پھر ہم افغان مجاہدین کی سائڈ لیں. اور ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ یہ سارے آپشن ہمارے پاس ہے جہاں سے ریزسٹنس جو ہے وہ, یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. تو آج ہم ڈیسائسو سولوشن دے رہے ہیں افغانستان کا. آئندہ کبھی بھی افغانستان میں کوئی حل ہوا, امن ہوا, تو اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہوگا کہ افغانستان سے یو ایس اور نیٹو فورسز کو نکلنا پڑے گا, انڈینز کو نکلنا پڑے گا. یہاں مسلم پیس کیپنگ فورسز آئیں گی. پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرنے کا سب سے زیادہ اہل ہے. ہم نے اقوام متحدہ میں جا کے بھی مسلمان دنیا کی نمائندگی کی تھی. عرب بھی ہم سے کمفرٹیبل ہیں, ایرانی بھی ہم سے کمفرٹیبل ہیں, ترک بھی ہم سے کمفرٹیبل ہیں, افغان بھی, بنگلہ دیشی مسلمان بھی, ملیشین بھی, سب پاکستان کی. ہمارے سب سے زیادہ ایسٹس اور وسائل بھی افغانستان میں موجود ہیں. افغان مجاہدین, چاہے وہ شمالی اتحاد, چاہے ناردرن ایریاز کے مجاہدین ہوں, چاہے وہ افغانستان کے ریزسٹنس پشتون ایلیمنٹس کے مجاہدین ہوں, آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے ہیں. ان میں چند غدار ضرور پیدا ہوئے ہیں ناردرن الائنس کے گروپ میں, لیکن تمام تاجک تمام ازبک تو غدار نہیں ہے, تمام تاجک تمام ازبک تو کافر نہیں ہے. افغانستان کے لوگوں میں آپس میں اختلاف ہے. یہ ایک اس سے بڑا تاریخی موقع ہم کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا. ایک لیڈرشپ کا رول ہم پلے کر سکتے ہیں. ہم ایک بڑے بھائی کا, اور اکیلے نہیں, پوری مسلم دنیا اخوت کے نام پر, قرآن کے اس حکم کی بنیاد پر کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اکٹھا کرو اگر ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. یہ اور مسلم پیس کیپنگ فورس اب ہمیں بنانی پڑے گی, جو صرف افغانستان میں نہیں, دنیا کے ان تمام خطوں میں داخل کرنی پڑے گی کہ جہاں پر مسلمانوں کے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے, جہاں مسلمانوں کے میں اختلافات ہیں. ہم کیوں, جب یورپین اور امریکن تو نیٹو اپنی فورسز بنا کے پوری دنیا میں بھیج سکتے ہیں, تو کیوں دنیا میں آج ایک مسلم پیس کیپنگ فورس نہیں ہے؟ ہم اپنے مسائل کو, اپنے علاقوں کو, اپنے خطوں کو, اپنی تہذیب کو, اپنے دین کو خود جانتے ہیں. افغانستان کے غیرت مند لوگ اس بات میں ذلت محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کے دروازے توڑ کر امریکن فورسز اندر گھسیں اور ان کی عورتوں اور بیٹیوں کو بے حرمت کریں. پاکستانی, عرب, ترک اور ایرانی اور بنگلہ دیشی مسلمان اپنی تہذیب کے ساتھ ہوں گے, تمدن کو جانتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان سے لڑے افغانستان میں. افغانستان کے طالبان بھی اور شمال کے لوگ بھی پاکستانی اور مسلمان فوجوں کو قبول کریں گے. امریکن اور نیٹو کے مقابلے میں تو 100 دفعہ قبول کریں گے. اور ایک دفعہ افغانستان میں مسلمان امن لے کر آتے ہیں, پھر اپنے اپنے گھر ہم سکون سے جا سکتے ہیں. افغانستان میں بھی امن ہوگا, پاکستان میں بھی امن ہوگا. ہم اس وقت ڈیسائسو بات کر رہے ہیں. پاکستان کی حکومت کو وہ تمام ڈیسیشن جو جرگئی میں اور جرگے میں لیے گئے تھے ان کو فورن پالیسی بنانا ہے. پاکستان آرمی کو کہ اگر امریکن انڈین بیسز کو ختم نہیں کرتے ہیں اگلے 15 دن کے اندر یا 1 مہینے کے اندر, تو پھر پاکستان اس بات کا پورا حق رکھے گا کہ جو ایئر اسٹرائکس ہم ساؤتھ وزیرستان میں بیت اللہ محسود پر کر رہے ہیں, اس سے ہم 10 کلومیٹر آگے جا کے انڈین کانسولیٹس کو بھی بم کریں. یہ ہمارا حق ہے, کیونکہ ہم جو جنگ کر رہے ہیں, جب انڈیا حق رکھتا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کا اس کے دعوے کے مطابق, تو ہمیں بھی حق ہے کہ ان تمام انڈین ایسٹس کو افغانستان میں ایلیمنیٹ کریں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو سن لینا چاہیے بڑے ہوش کے ساتھ. ہم ہر آپشن اپنے پاس رکھتے ہیں, جب چاہیں گے جس طرح چاہیں گے آپریٹ کریں گے. پاکستان ایک مقدس سرزمین ہے ہمارے لیے, اس کی حفاظت میں ہم جو مرضی قدم اٹھائیں گے ہمارے لیے جائز ہوگا. اللہ اس کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا, بٹ ویل میک شیور کہ جو اس کے دشمن ہیں وہ جہنم ہمارے ہاتھوں رسید ہوں. انشاءاللہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ. پاکستان انشاءاللہ خیر سے ہے اور خیر سے رہے گا. اس کے دشمن نامراد اور ناکام ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ زید صاحب. Viewers, with this we come to the end of CIA Threats to Pakistan Part 5. آج ہم ڈسکس کیا کہ فیوچر میں انڈیا کا کیا کردار ہوگا, اس کے کیا مووز ہوں گے. انفیکٹ
CIA کے کردار پہ ہم نے بات کی, امریکہ کے کردار پہ ہم نے بات کی, اور ہم نے بات کی پاکستان کے مستقبل کے لاہے عمل کے حوالے سے کہ پاکستان کی فیوچر میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ان تمام پرابلمس کے حوالے سے. زید صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا اور آج آپ بہت کچھ جان چکے ہوں گے پاکستان کے انفیکٹ فیوچر میں کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے اس حوالے سے. یہاں ہم اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں براس ٹیکس کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.